Also recently said that the Middle East would be better off with Gaddafi, Saddam Hussein, and Assad in power. How does... I didn't say Assad, but we certainly have not gained anything with Gaddafi. And you look at what happened. I mean, look at Libya, look at Iraq. Iraq used to be no terrorist. He would kill the terrorists immediately. It was like, now it's the Harvard of terrorism. Iraq. If you look at Iraq from years ago, I'm not saying he was a nice guy, he was a horrible guy. But it was a lot better than it is right now. Right now, Iraq is a training ground for terrorists. Right now, Libya, nobody even knows Libya. Frankly, there is no Iraq and there is no... گزارش یہ ہے کہ ٹرمپ آج بول رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے بولیں، دہشت گرد بنائے نہیں، نہ عراقی دہشت گرد ہیں، نہ لیبیا میں دہشت گرد ہیں، نہ یمن میں ہیں، نہ شام میں ہیں، نہ فلسطین میں ہے، نہ لبنان میں ہے، نہ ایران میں بھی نہیں ہے، افغانستان میں بھی نہیں ہے۔ دہشت گردی کی تعریف تو پہلے یہ کر لیں امریکی، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں، لوگوں کے بچوں کو ماریں، لوگوں کے ملکوں کو تباہ کر دیں، لوگوں کی عمارتوں کو مسمار کر دیں، ان کے سالمیت اور خود مختاری کا احترام نہ کریں، اور کہیں کہ ہم آپ کی بہتری کے لیے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ ایک یہ ان 20 سالوں میں 1.25 کروڑ مسلمان شہید ہوا، جی اس کا خون کس کے سر ہے؟ کیا یہ دہشت گردی نہیں کہ آپ کے 10 بندے مرے تو آپ نے 1.25 کروڑ مسلمان شہید کر دیے؟ اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے؟ سارا پہلے تو یہ بتائیے کہ ظاہر ہے اب کیا اندر نامے جو بات چیت ہو رہی ہے یا امریکہ کے پاور کوریڈورز میں کیا خبریں آپ کو مل رہی ہیں؟ افغانستان کے جو تمام تر جنگ تھی اس کا 20 سال کے گزر جانے کے بعد جو بائیڈن حکومت کے ریلیف محسوس کر رہی ہے یا وہ خدشہ جس کا ہم اظہار کر رہے ہیں کہ کچھ مزید چیزیں انکشافات سے بھرپور شاید ڈاکیومنٹس کی صورت میں منظرنامے پر ابھرنے والی ہیں؟ سارا جی بہت شکریہ۔ ویسے تو 9/11 امریکہ میں ہر سال ایک ایسا دن ہوتا ہے جو بہت جذباتی ہوتا ہے، مختلف جگہوں پہ جو سیریمنیز ہوتی ہیں ان سے بہت جذباتی مناظر سامنے آتے ہیں۔ اس مرتبہ 9/11 اس لحاظ سے بہت مختلف ہے کہ جس طرح سے آپ نے بھی کہا منظرنامہ بہت بدل گیا ہے۔ افغانستان کی جنگ ختم ہو چکی ہے اور جنگ جو ختم ہوئی ہے اس میں ایک مرتبہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان ہی افغانستان میں واپس آ چکے ہیں، وہی اپنی حکومت بنا بھی رہے ہیں۔ اور پھر جو افغانستان سے امریکہ کی طویل ترین جنگ کے آخری جو ایام ہم نے دیکھے، جو انخلاء کا جو مرحلہ تھا، جو آخر کے 2 ہفتے تھے، ان میں جس طرح سے افراتفری ہوئی وہ بھی یہاں پہ امریکی انتظامیہ، خاص طور پہ صدر بائیڈن کی جو انتظامیہ ہے اس کے لیے بہت دباؤ کا باعث بنی، بہت تنقید کا باعث بنی۔ تو اس دفعہ جو 9/11 ہو رہا ہے وہ بہت ایک ایسے ماحول میں ہو رہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کر رہی ہے۔ صدر بائیڈن پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں، خاص طور پہ جب انخلاء مکمل ہو گیا اس کے بعد انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ انخلاء جب بھی ہوتا افراتفری یا جو مشکلات جن کا سامنا ہوا ہے ان کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، کچھ نہ کچھ مشکلات ضرور درپیش آتی۔ تو وہ اپنی جو حکمت عملی ہے انخلاء کی اس کو بھی انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے، جس طرح سے انخلاء ہوا اس کے بارے میں جو تنقید ہوئی اس پہ بھی انہوں نے رد عمل دیا ہے۔ لیکن اوور آل امریکہ میں اس وقت 9/11 ایک ایسے ماحول میں ہو رہا ہے جب افغانستان میں طالبان واپس آ چکے ہیں، لیکن جو ایک اوور آل فکر تھی امریکہ میں اور جو انتخابی وعدے بھی تھے پچھلے الیکشن کے کہ امریکہ کی طویل ترین جنگ کو ختم کیا جائے، وہ وعدہ بہرحال مکمل ہو چکا ہے۔ لیکن اسی منظر نامے کے ساتھ سوال یہ ابھر رہا ہے کہ یہ جو خبریں واشنگٹن پوسٹ پر بھی ہم نے دیکھی، دیگر اور جرائد میں بھی ہم نے ان کو پڑھا ہے کہ کچھ ایسے ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ جو بائیڈن رجیم ریویل کرنے جائے گی 9/11 سے ریلیٹڈ، وہ کس نوعیت کے ڈاکیومنٹس ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اس حوالے سے معلومات ہے؟ اچھا، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں ہسٹری میں تھوڑا سا جانا پڑے گا کہ جب 9/11 کا سانحہ ہوا تھا تو اس کے بعد 9/11 کمیشن بنایا گیا تھا جو کہ بائی پارٹیزن تھا، یعنی اس میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کی برابر تعداد تھی۔ اس کمیشن نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا خاص طور پہ سعودی عرب کے حوالے سے کہ جی سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد نے شاید ہائی جیکرز کی مدد کی ہو۔ آپ کو یاد ہوگا 19 میں سے 15 ہائی جیکرز سعودی ہی تھے،
लेकिन सऊदी हुकूमत को किसी भी किस्म की जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं डाली गई थी। ये नहीं कहा गया था कि सऊदी अरब ने इसमें कोई 9/11 की प्लानिंग में और इसके एग्जीक्यूशन में कोई किरदार अदा किया हो। अच्छा, उसके बाद हम आगे आते हैं 2016 में। 2016 में FBI ने एक इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें बुनियादी तौर पे यही इन्वेस्टिगेट किया गया था कि सऊदी अरब का इस वाक़े से क्या ताल्लुक है। उसके बाद 2017 में हजारों मुतासरीन ने जो 9/11 के थे उन्होंने एक कोर्ट केस फाइल किया था। तो अब जो डॉक्यूमेंट्स रिवील होने जा रहे हैं जिनको डीक्लासिफाई करने का सदारती हुक्मनामा सदर बाइडन ने हाल ही में जारी किया है, वो उस इन्वेस्टिगेशन से मुताल्लिक है जिसमें यह बात पता लगने का इम्कान है कि सऊदी अरब का इस पूरे वाक़े से क्या ताल्लुक था। क्या सिर्फ सऊदी शहरी आपस में इस हवाले से राब्ते में थे या सऊदी हुक्काम भी किसी न किसी तरह से जानते थे या इसकी प्लानिंग में मुलव्विस थे? क्योंकि जिन लोगों ने लॉ सूट फाइल किया हुआ है 2017 से, उनका बुनियादी जो पॉइंट है इस लॉ सूट का वो यही है कि हमें पता लगे, हमें बताया जाए कि सऊदी अरब का क्या किरदार था और उन्होंने सऊदी अरब से कॉम्पनसेशन डिमांड की हुई है। लेकिन चूंकि ये डॉक्यूमेंट्स अब से पहले तक क्लासिफाइड रहे हैं, तो इस वजह से जो लॉयर्स हैं, इन लोगों के जो मुतासरीन हैं, उनके पास मुकम्मल मालूमात नहीं है और इसीलिए जो विक्टिम्स हैं वो ये इंतजार कर रहे थे। और मैं आपको यहाँ बताती चलूं कि विक्टिम्स ने 9/11 से कुछ ही रोज पहले एक बयान भी जारी किया था और उसमें कहा था कि अगर सदर ने ये डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई करने का हुक्मनामा जारी ना किया, फैसला ना किया, तो हम नहीं चाहते कि वो 9/11 की जो तकरीबात हैं यादगारी, उनमें भी वो शिरकत करें। तो काफी बड़ा ये मामला हो चुका था। ठीक है जी, तो जिसके बाद सदर ने ये डीक्लासिफिकेशन का ऑर्डर जो है वो जारी किया। तो अब जो सवाल ये कि डॉक्यूमेंट्स में क्या सामने आएगा, देखना यह है कि सऊदी अरब के हवाले से FBI की जो तहकीकात थी उनका नतीजा क्या था। ठीक, बिल्कुल ठीक है। सारा, एक सवाल है उबूरी तालिबान के हवाले से, वो मैं आपसे पूछती हूँ, लेकिन जरा मैं शामिल गुफ्तगू कर लूँ ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब को। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। सारा जमान फरमा रही हैं कि जो रिवील डॉक्यूमेंट है उसमें ज़ाहिर है सऊदी हुकूमत या सऊदी अरब के हवाले से क्या चीजें मजीद सामने आएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरेदस्त मामला ये है कि आज इंटेलिजेंस चीफ्स की यहाँ एक वर्चुअल इजलास हुआ है जिसको ISI के चीफ ने उसकी मेजबानी की है, DG ISI जो है। कहिएगा कितना इंपॉर्टेंस है ये सारी चीजें, क्या आपस में कहीं ना कहीं रिलेशन रखती हैं या नहीं? क्योंकि जो टाइमलाइन अब बन रही है 9/11 के बाद की, जब हम 20 साल बाद खड़े हैं, तो यहाँ सिनेरियो सर बड़ा बदल गया है। ब्रिगेडियर साहब, कैसे देख रहे हैं इस टाइमलाइन को अब? जी, मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बन गई है, बनने वाली है, इस वक्त और सारा इसका मलबा जो है पाकिस्तान के ऊपर भी डाला जा रहा है। संभव ये पाकिस्तान संभव अफगानिस्तान के हवाले से हमेशा स्केप गोटिंग का शिकार रहा है। यानी तालिबान के बनाने में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था, लेकिन फिर भी कहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिएशन है। और फिर उनका अभी जब ये आए हैं हुकूमत में, तो अमेरिका ने इनसे बातचीत की है दोहा में, और खुद ही जी उन्होंने जो भी बातचीत की है, जो भी माहिदा दस्तखत किया है वो किया है। और अभी हमें ये देख रहे हैं कि उसके अंदर इंडिया जो है बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है और काफी सारी चीजें, यानी ये उनकी इंटरनल लड़ाई थी तालिबान की, उन्होंने पंजशीर के ऊपर कब्जा किया, तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान के एयर फोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है वन वे और दी अदर, या कोई और भी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी अपने पत्ते जो है वो देखने पड़ते हैं। ओके, उनको देख, हाँ, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, लेकिन शाह साहब सवाल मैं ये करना चाह रही थी, अब जरा सारा से इस पर ले लूं जवाब, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। सारा, ज़ाहिर जब अफगानिस्तान से इनखला का आपने शुरू में तस्करा किया और वो इनखला कैसे हुआ, क्या हुआ, उस सिचुएशन पर बहुत ज्यादा डिबेट हो रहा है, लेकिन हम ये सवाल करना चाहते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान में जो मुआशी बहरान है, क्या जो बाइडन हुकूमत की जानिब से उस मामले को देखा जा रहा है और उसमें किसी भी तरह की मुआवनत फराहम करने का कोई इंडिया मौजूद है उनकी टेबल पर या नहीं? जी, ये सिचुएशन यकीनन बाइडन इंतजामिया के लिए कॉम्प्लिकेटेड है और उसकी वजह यह है कि एक तरफ इनखला से पहले ही अमरीकी इंतजामिया अफगानिस्तान से ये वादा कर रही थी कि अफगान अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा, उनकी सिफारती मदद भी की जाएगी, उनकी माशी मदद भी की जाएगी। लेकिन फिर न सिर्फ ये कि तालिबान हुकूमत बना रहे हैं, बल्कि उसमें हक्कानी नेटवर्क के अफराद शामिल हैं जिनके ऊपर करोड़ों डॉलर का $1 करोड़ का $10 मिलियन का सराजुद्दीन हक्कानी के सर पे इनाम है।
तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन अब क्रिएट हो रही है कि एक तरफ यह है कि अफगानिस्तान के इंसानी बहरान से निपटना है और दूसरी तरफ यह है कि ऐसे लोगों के हाथों में वसाइल नहीं अमेरिका देना चाहेगा जिनको टेररिस्ट करार दिया गया है, जिनके सरों पे बाउंटी है, जिनके सरों पे इनाम है। तो इस वक्त बाइडेन इंतजामिया को ये फैसला करना होगा, ये देखना होगा कि किस रूट से जाया जाए कि अफगान अवाम की मदद हो जाए। हम जानते हैं कि अरबों डॉलर के जो एसेट्स अफगान हुकूमत के बैरून मुल्क हैं उनको इस वक्त अमेरिका ने भी और वर्ल्ड बैंक ने भी और दीगर आलमी इदारों ने भी फ्रीज किया हुआ है और उसका शॉर्ट टर्म में तो अभी अनफ्रीज होना नजर नहीं आ रहा। ओके सारा, लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा, पब्लिक सेंटिमेंट्स क्या हैं जो बाइडेन की इंतजामिया के लिए? क्या रिलीफ सेंटिमेंट्स हैं, मिले जुले लोगों के तासुरात हैं कि ठीक है अफगानिस्तान से इनखला हो गया, और लोग इस पर अपनी क्या ओपिनियन मेकिंग देते हैं आपको? देखिए, जो तो अफगानिस्तान से इनखला का फैसला है उसकी अमेरिकियों की बड़ी तादाद जो है वो हिमायत ही करती है। यहाँ तक कि हमारी जो इंतजामिया के नाकदीन से भी बात होती है, जब कंजर्वेटिव से भी जो रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सर्व कर चुके हैं वो भी ये कहते हैं कि इनखला हो जाना चाहिए था। हाँ, इस पे एक तो सवाल है कि क्या मुकम्मल होना चाहिए था या किसी किस्म की प्रेजेंस मेंटेन करनी चाहिए थी ताकि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस आगे चल के जो है वो हो सकते थे। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान में कितना ज्यादा खौफ है, क्योंकि अभी जो वाशिंगटन में जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे अभी कुछ दिन पहले भी लगे थे और आज भी, सॉरी कल भी लगे। आपको पता होगा कि 20 साल पूरे हो गए जो अभी